یہ آپ لوگوں نے عزت دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک نعرہ لگاتا ہوں، آپ نعرے میں میرا ساتھ دیں، اس لیے کہ باقی لیڈرشپ نے تقریر کرنی ہے. نعرہ بھٹو. بہت شکریہ جی. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر عزت محترم نثار احمد کھوڑو صاحب کو کہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین جناب آصف علی خان زرداری صاحب، اور اسٹیج پہ ساری پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور سامنے سارے صوبوں سے آنے والے میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، جیانوں، السلام علیکم. بھٹو. سندھ میں جلسو تھو تھیے تو شاہ صاحب جے بھیت ساں تو سوریہ مری سو بکھے تو دل جا وہم وسار ہن بھالا وڑ بھاکریں آڈی ڈھال مڈھار متھاں تیز ترار مار تو متارو تھے. ہی شیر ہے پیپلز پارٹی تے. ہی شیر سمجھو ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹے صاحب جڑے عوام جو محرومیوں ڈٹھئی، جڑے عوام کے طاقت ڈیان جی گال ہلی تو وہ انقلابی فیصلہ کھڑی، انقلابی سوچ کھڑی، ہن پاکستان جے ان غریب کے ہمت ڈیان جے لائے ہی منشور کھڑی آئیو. پر خبر ہوئیس تو جڑے یہ گال گیا تھو، جب میں عمارتوں والوں سے لڑنے کی بات کرتی ہوں، جب میں مل مالکان سے لڑ رہا ہوں، جب وٹیروں سے لڑ رہا ہوں اور غریبوں کے لیے لڑ رہا ہوں تو تکلیف بھی آئے گی. اور تکلیف کی بات کو سنتے ہوئے وہ تھا بھٹو صاحب جو کبھی گھبرایا نہیں، چاہے حکومت میں تھا یا مہم پر تھا تو گھبرایا نہیں. اور پھر دیکھ لیا آپ نے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے، پھانسی چڑھ کے اپنے آپ کو امر تو کر دیا لیکن میری دھرتی پہ رہنے والوں کا سر اونچا کر گیا. وہ سر اونچا کر گیا اور ہمت دلا گیا بھٹو صاحب. اور پھر اس کی بیٹی جس نے پارٹی کو سنبھالا دیا، جیل برداشت کی، بدنامی، تکیاں، اذیتیں، ذہنی اذیتیں، گھر سے دور، بچوں سے دور، ملک سے دور، جیل میں، گرمی میں، سردی میں نبھاتی رہی اپنے پارٹی کے ساتھ. اور پھر دیکھ لیا تم نے بھی
کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر اپنی پارٹی کے لوگوں کا ساتھ نبھانے کے لیے، اپنے عوام کا ساتھ نبھانے کے لیے تیرے میرے بیچ آئی اور کہا بھٹو کی مشن کو پورے کرنے جا رہی ہوں، چاہے جان چلی جائے تو چلی جائے۔ یہ ہم وہ ہیں جو جان دے کر اور نبھاتے ہیں، اور یہ ہیں وہ یو ٹرن لینے والے، یہ ہیں یو ٹرن لینے والے جو کوئی معافی مانگتے ملک سے بھاگ جاتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یو ٹرن بولنا بہت اچھا ہے۔ ایک جھوٹے حکمران اپنی جان کا کیا نذرانہ دیں گے؟ یہ تو پیپلز پارٹی ہے کہ اس کے ورکر اور اس کے لیڈر جان دے کر بھی عوام کے ساتھ اپنا دیا ہوا وعدہ نبھا کے دکھاتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں تاریخ میں۔ کوئی کچھ بھی کرے اس کا نام مٹا نہیں سکو گے پیپلز پارٹی کا، اور مقابلہ کریں گے اور بھگائیں گے قائر حکمرانوں کو، اور ہم قائر حکمرانوں کو بھگا کر اسی پر دھرتی پر ان سارے غریبوں کا خیال کریں گے جنہوں نے ابھی تک تنگی دیکھی ہے، مہنگائی دیکھی ہے، بے روزگاری دیکھی ہے، پستی دیکھی ہے۔ چاہے ہاری ہو تو وہ ظلم میں پس رہا ہے، چاہے مزدور ہو تو ظلم پہ پس رہا ہے، چاہے نوجوان ہے تو وہ ظلم میں پس رہا ہے، چاہے میری بہنیں ہیں تو وہ ظلم میں پس رہی ہے، لیکن ہم ہیں، بلاول ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں آصف علی خان زرداری کے ان 11 سالہ جیل کو کہ جس نے جیل میں رہ کر بھی پارٹی کی خدمت کی اور ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں مضبوط کیا، پارٹی کو مضبوط کیا، عوام کو مضبوط کیا۔ ہمارے پاس جب ایسے لیڈر ہیں تو کسی کے سامنے ہم کبھی سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے چیلنج کرتے ہیں۔ کوئی ہمسا ہے تو دکھاؤ۔ پیپلز پارٹی زندہ باد، بھٹو شہید زندہ باد، بے نظیر شہید زندہ باد، اور بلاول بھٹو پائندہ باد۔ السلام علیکم، مہربانی۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، پارلیمنٹ ہاؤس ہو یا عوام کا اجتماع ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف برجستہ، برملا، بروقت دلیل و بہادری کے ساتھ پیش کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن محترم سید خورشید احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین آصف علی زرداری صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر صاحبان، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، پارٹی کے عہدیداران، صوبہ سندھ کے صدر، چیف منسٹر سندھ، اور میرے شہید بھٹو کے شہید بی بی کے جیالو، آج خوشی کا دن ہے۔ آج پاکستان کے جمہوریت پسند کارکنوں کا عید کا دن ہے۔ آج وہ تاریخی دن ہے جس دن شہید بھٹو نے ایک سیاسی انقلاب برپا کیا تھا، عوام کو ایک پیغام دیا تھا کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے، پاکستان کی ترقی خوشحالی جمہوریت میں ہے، پاکستان کی ترقی جمہوریت میں ہے، مزدوروں کی خوشحالی
जमहूरियत में है, किसानों की खुशहाली जमहूरियत में है, आजादी का नाम जमहूरियत है, लिखने वालों का पैगाम जमहूरियत है, पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल जमहूरियत है। शहीद ने उन आमरों के खिलाफ जिन लोगों ने, जिन आमरों ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिस पाकिस्तान को जिन असूलों पे लिया, उन लोगों ने पामाल किया। भुट्टो ने वही असूल जो कायद जिन्ना ने दिया था, वो पाकिस्तान के अवाम को वापस दिया। आज हम कहते हैं, मैं दावा से कहता हूं, चैलेंज भी करता हूं, आओ बात करो हर उस शख्स से कि बताए कि आमरों ने क्या दिया और जमहूरियत ने क्या दिया। आमरों ने पाकिस्तान को 2 लाख किया, आमरों ने पाकिस्तान का पानी बेचा, आमरों ने 71 की वार में शिकस्त फाश खाई, आमरों ने कारगिल जैसी जंग छेड़ के पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की। और पाकिस्तान की सियासत में आज जो योम हमारा है तासीस, आज ये दिन हमें पैगाम देता है। वो पैगाम देता है कि हमने आपको आइन दिया, हमने आपको आइन दिया, हमने आपको पार्लियामेंट दी, हमने आपको जमहूरियत दी, हमने आपको आजादी दी, कलम की आजादी दी, हमने किसानों के हकूक की हिफाजत की, हमने मजदूरों के हकूक की हिफाजत की, नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशनास किया। आज जो पाकिस्तान है, यह सियासतदानों का मरवे मिन्नत है। पाकिस्तान सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, पाकिस्तान न आमिर चला सकते हैं, न आमरा न सोच रखने वाले कोई हुक्मरान चला सकते हैं। वो सिर्फ मुर्गियां पाल सकते हैं और अंडे दे सकते हैं, अवाम को हकूक नहीं दे सकते। उनको क्या पता कि पाकिस्तान के अवाम को क्या चाहिए, उनको क्या पता कि पाकिस्तान के गरीबों के मसाइल क्या है, उनको क्या पता कि नौजवानों के मसाइल क्या है। उनको तो सिर्फ ये पता है कि किस तरीके से गुलामी की तरह गुलाम बन के हुक्मरानी करनी चाहिए। तुम्हें तो यह भी पता नहीं कि तुम वजीर आजम हो, तुम्हें तो यह भी पता नहीं कि तुझे अवाम ने वोट दिया है या नहीं दिया है। तुझे तो याद दिलाया जाता है कि तुम अब वजीर आजम हो। यह हकीकत भी है, सही भी सोचता है कि उसको तो वजीर आजम है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, वजीर आजम तो कोई और है, हुक्मरानी तो कोई और करता है। मगर आज का दिन है, मैं समझता हूं पार्टी सोचती है, लीडर सोचते हैं, अवाम सोचते हैं कि यौम 14 अगस्त 31 नवंबर है, यह 2 दिन तारीखी दिन है जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था और 30 नवंबर को पाकिस्तान के अवाम आजाद हुए थे, डिक्टेटरों से आजाद हुए थे। और हम आज फिर एक मर्तबा आहद करते हैं इस खुशी के मौके पे कि यह दिन खुदा की कसम ये सिर्फ पीपुल्स पार्टी का दिन नहीं है। याद रखो, यह पीपुल्स पार्टी का सिर्फ दिन नहीं है, यह हर जमहूरियत सोच रखने वालों का दिन है। यह हर उस मजदूर का दिन है जो अपना हक मांगता है, यह हर उस किसान का दिन है जो अपना हकूक मांगता है, हर नौजवान का दिन है जो मुस्तकबिल रोशनास चाहता है। यह पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का दिन है। इस दिन को हमेशा खुशियों और ईद की तरह मनाया जाए और आज हम इस दिन को खुशी की तरह
عید کی طرح مناتے ہیں بلاول بھٹو کی لیڈرشپ میں. جیے بھٹو. زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی. اب میں دعوت خطاب دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ماہر قانون دان محترم اعتزاز احسن صاحب کو آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب صدر جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب مراد علی شاہ صاحب، جناب خورشید احمد شاہ صاحب، جناب اسلام الدین شیخ صاحب جو ہمارے سندھ اور سکھر کے حوالے سے میزبان ہیں، خواتین و حضرات، پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں اور جالیوں، سب سے پہلے تو میں سکھر کے عوام کو اور سکھر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی قیادت کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو اتنے مختصر عرصے میں انہوں نے اتنا عظیم الشان جلسہ منعقد کیا ہے. اور جناب خورشید احمد شاہ صاحب اور اسلام الدین شیخ صاحب کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں، تمام جیالوں، تمام بہنوں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا یوم تاسیس آپ نے ایک یادگار یوم تاسیس بنا دیا ہے. جب یوم تاسیس ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے، اپنا تخمینہ لگانا ہوتا ہے، ماضی میں جانا ہوتا ہے، مستقبل کی طرف دیکھنا ہوتا ہے. یہ 51 سال پارٹی کی بنیاد رکھے گئے، 51 سال ہوئے، 50 سال گزر گئے، نصف صدی گزر گئی، اگلی نصف صدی کا آغاز ہے. یہ ایک لحاظ سے ایک نیا یوم تاسیس ہے. اور اس وقت جب ہم 50 سال مڑ کے دیکھتے ہیں تو جس طرح جناب قمر زمان کائرہ صاحب نے یہاں وہ دستاویز پڑھی، میں مختصراً آپ کو اصول یاد کرانا چاہتا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اصول شہید ذوالفقار علی بھٹو اور پھر شہید بے نظیر بھٹو نے استوار کیے. 5 اصول سے پہلے 4 شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے دیے کہ اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا دین ہے. کون سا اسلام؟ وہ کسی سنی کا اسلام نہیں، شیعہ کا اسلام نہیں، دیوبندی کا اسلام نہیں، بریلوی کا اسلام نہیں. وہ اسلام جو قائد اعظم کا اسلام تھا. جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کیا آپ شیعہ ہو یا سنی ہو، انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں. وہ اسلام جس کی اسلامی کانفرنس لاہور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بلا کر اور شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ہر قسم کے حنفی، شافی،
سارے مسلمانوں کے سربراہوں کو ایک کر دیا. دوسرا اصول جمہوریت ہماری سیاست ہے. یہ اصول بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا اور 1973 کا آئین جمہوریت میں اس کی بنیاد تھی. جمہوریت سے مراد کیا ہے کہ غریب اور امیر برابر ہیں, مزدور اور فیکٹری کا مالک برابر ہیں, سب کے برابر کے ووٹ ہیں, ٹھیلے والے اور کوٹھی والے برابر ہیں, ٹانگے والا اور موٹر والا برابر ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دستور ہے. تیسرا اصول سوشلزم ہماری معیشت ہے. سوشلزم کیا ہے؟ برابری, مساوات, سب ایک, سب کے بچوں کو ایک جیسا موقع ملنا چاہیے. اسکول میں, ملازمت میں, مستقبل کے لیے. سوشلزم ہماری معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور بی بی شہید نے ایک 5واں اصول نہ صرف اس میں ڈالا پیپلز پارٹی کے بنیادی اصولوں میں, پر اس شیر کی بچی نے دھاڑتے ہوئے جس طرح وہ پاکستان لوٹی, الیکشن جب ہو رہے تھے 2007 اور 2008 والے, اس نے اس پہ عمل کیا. اور وہ اصول ہے شہادت ہماری منزل ہے, اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور شہادت ہماری منزل ہے. شہادت کا منزل ہونے سے کیا مراد ہے کہ امام حسین کی طرح اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی طرح موت سر پر منڈلا رہی ہو, موت نظر آتی ہو, مدینے والے روکتے ہو کہ حسین نہ جا, ادھر کرب و بلا ہے, حسین تپتی ریت ہوگی, حسین خیمے جلائے جائیں گے, حسین علی اصغر کو شہید کیا جائے گا, حسین وہاں چادریں بیبیوں کے سروں سے نوچ لی جائیں گی. حسین تو کمزور ہے, حسین نہ جا. ادھر شہید بھٹو کو کہا جاتا ہے کچھ لکھ دو, کچھ معافی مانگ لو. وہ کہتا ہے میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا, انسان کے ہاتھوں مرنا چاہتا ہوں, تاریخ میں نہیں مرنا چاہتا. اس لیے کہا شاعر نے کہ موج ڈرتی نہیں ہے ساحل سے, موج جان سے گزاری ہے, جان بھی دیں گے ہم کرینے سے. جاؤ یہ دشت نینوا سے کہو ہم نکل آئے ہیں مدینے سے. دوستوں, ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے 51ویں میں تاسیس پہ جد و جہد ہماری آج اس یہاں پر ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں دکھائی جائے گی. آپ کو ڈاکومنٹری, برائے مہربانی ڈاکومنٹری دکھائیں. A moment longer than necessary. It's not Zulfikar Ali Bhutto as Zulfikar Ali Bhutto, but Zulfikar Ali Bhutto for what he has stood for, his struggle, what he stands for. Society, a happier society. We will fight. We'll go back and fight. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عظیم قوم بنے گی. یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. Food, clothing and shelter, education, health and jobs for all. تو خدمت کرو گے, محنت کرو گے, لڑو گے, پڑھو گے, اور جدوجہد کرو گے, ایمان سے کرو گے, خدا کی قسم کرو گے.
हमने देखा कि जब वो पहले क्राउड आए तो उन क्राउडों की जब हाजिरियां हम देखते थे तो लुटे पुटे से लोग थे, बिखरे चेहरों वाले, ख़त्म हुए, मुर्दा, पसमानदा से, इस तरह के चेहरे होते थे। जब भुट्टो साहब बात कर रहे होते तो उसकी तरफ ऐसे देख रहे होते थे, हाँ भाई इसकी बातों में हमारे लिए जो है निजात के कई रास्ते हैं, फलाह है, यही हमारी उमंगों का तर्जमान है, हमारी ही बात कर रहा है। और फिर उन्होंने ऐसी बातें की, उन्होंने एक आम आदमी को भी गले से लगाया। भुट्टो साहब ने जब जमहूरियत की बात की तो उसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि वो एक आम आदमी को रियासत के जितने भी अमूर हैं या इक़्तिदार आला का इंतखाब है उसमें एक आम आदमी की शराकत को यकीनी बनाना चाहते थे। 47 में we did separate from India based on our religious identity. तो it was a matter of time कि हम ये भी figure out कर लेते कि आइन भी हमारा एक ऐसा बने जो एक इस्लामी मेजॉरिटी नेशन के एस्पिरेशंस और उनकी ख्वाहिशात और उनके ख्यालात को रिप्रेजेंट करे, and that's where People's Party and Zulfikar Ali Bhutto's role is pioneering as I see history. तो जो भुट्टो आया था ना उसने यही कैफियत पूरी सोसाइटी में डाल दी थी कि वो जिस हीरो का इंतजार था ना वो मैं। और उसमें अट्रैक्शन की बेशुमार बातें थी। एक तो वो बहुत खूबसूरत आदमी थे, दूसरे वो बड़े वेल ड्रेस आदमी थे, तीसरे ये शख्सियत ही बहुत अच्छी थी जो अट्रैक्ट करती है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये एवोल्यूशनरी या ये इर्तिकाई अमल इसमें बढ़ चढ़ के हमेशा एक रोल प्ले किया। एट अ पॉइंट व्हेन वी थॉट कि मुल्क आज़ाद हो गया और हमें अब मज़ीद आगे एक सियासी एवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, इर्तिका की ज़रूरत नहीं है, दैट्स व्हेन जुल्फ़िकार अली भुट्टो कम्स इन। आइन हमें देते हैं, हमें सोशलिज्म को इस्लामिक कैरेक्टर के साथ मर्ज करके एक सिस्टम मुतारफ़ कराते हैं। फॉरेन पॉलिसी के अंदर डायनामिक्स नहीं आती हैं। लेकिन उन्होंने ये जो सोशलिज्म के हवाले से जो कदम उठाया, ये पाकिस्तान जैसी एक मजहबी पस मंजर रखने वाली रियासत में उनका ये बड़ा जरूरतमंदाना काम था और कदम था ये। तो ये सारे इदारे जो थे वो अपने अपने दायरा कार में अपने अपने डोमेन में रह के वो अपना काम करना उन्होंने शुरू किया था 73 के बाद। और 4 साल अगर ये सिलसिला जारी रहता, अगर ये सिलसिला, पाकिस्तान आज एक मैच्योर और बाशऊर लोगों की रियासत होती। बाद में वी कम टू बेनज़ीर भुट्टो, दैट्स अनदर लाइक एक मिथ शैटरिंग एक टेन्योर है कि एक मुसलमान मुल्क जहाँ पे औरतों की अभी बहस ये चल रही है कि घर से बाहर निकल के नौकरी करनी कि नहीं करनी, उस मुल्क में उस दौर में वी हैव अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर। Benazir Bhutto represents the change in philosophy and identity. लोग कहते हैं ना कि तुम एक औरत हो, तुम क्या कर सकती हो। For me, she changed that around. It's like मैं एक औरत हूँ और सिर्फ मैं ही ये कर सकती हूँ। ताले आजमाई का एक दौर था मुहिम जुई का, वो जो गुजार लिया उन्होंने, तो सोचा गया कि अब जो बेनज़ीर आएगी तो वहाँ से नए सिरे से काम शुरू करेगी। तो प्रेशन का दौर था ज़िया साहब का, तो उसके बाद लोगों को एक होप नज़र आई है, उम्मीद नज़र आई है, उन्हें भुट्टो नज़र आया है, इसलिए लोग निकले हैं और बेनज़ीर ने भी उसको डिलीवर किया है। सो ये पीपल्स पार्टी का रोल रहा है कि दे हैव ऑलवेज बीन द वन हु ब्रिंग दैट साइज्मिक शिफ्ट जो कि हमें मज़ीद एक इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेसी की तरफ लेके जा रहा है। और वैसे भी अगर देखा जाए, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे पीटीआई है, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही मैनिफेस्टो को लेकर चल रही हैं। पीसेस में कह लें वही चीज़ें हैं, पीटीआई में वही चीज़ है, लेगेसी आर भुट्टो की लेगेसी ही चल रही है। जब 2007 में वो जब वापस आई थी, शी केम बैक फॉर हर कंट्री, शी केम बैक फॉर द पीपल शी लव्ड। इससे ही साबित होता है उनकी लेगेसी के जब आप किसी को प्यार करते हो उसके लिए आपको अपना टाइम, अपनी मेहनत, सब कुछ देना पड़ता है एंड जान भी देनी पड़ती है। सिर्फ बिलीव नहीं करते, उसके लिए वाकई ये बहुत ओवरस्टेटेड बात है कि जी शहादतें देते पीपल्स पार्टी को। When you really look at it, they have put their lives forth for democracy. देखिए ये बात खुले आम ये देखने वाली बात है, इंसाफ करने वाली बात ये है कि उनकी फैक्ट्रियों में इजाफा होता है,
اور جب پیپلز پارٹی جا رہی ہوتی ہے تو ان کی قبروں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے قبرستانوں کی تعداد بڑھتی ہے، قبروں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مذہبی حوالے سے جنہوں نے پیپلز پارٹی کے مقابلے اور پیپلز پارٹی کے لیے چیلنجز کھڑے کر دیے، ان کو پسپا ہونا پڑا، آج بھی پسپا ہو رہے ہیں۔ But when I see بلاول بھٹو speaking in the parliament اور جب میں اسے ایک ایکٹیو اپوزیشن کا کردار ادا کرتے دیکھتا ہوں تو I feel like کہ this is the ideal پاکستان، کہ جہاں پہ کوئی پالیسی میں چینج آنے سے پہلے، لا میں چینج آنے سے پہلے اس کی ڈسکشن سے، اس کے امپیکٹ سے لوگوں کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا، ملک کی فیوچر پہ کیا فرق پڑے گا، اس چیز سے ہم گھبرائیں نہیں، اس بات کو آگے لے کے چلیں۔ اس ملک میں جمہوریت کی بقا، پروگریسو پالیٹکس کی بقا کے لیے پیپلز پارٹی کا رہنا، گرو کرنا، ایوالو کرتے رہنا از کروشل، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو وی نو واٹ ہیپنس۔ Despite all its tall claims, there is not one line in the finance bill that lives up to the promise made to the people of Pakistan. The Pakistan People's Party has never and will never compromise on the interests of the people of Pakistan, compromise on the interests of democracy, or compromise on the interests of this great country. یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے۔ شہید بابا، شہید رانی، آپ کی شہادت کو سلام، آپ کی شجاعت کو سلام، آپ کی سیاست کو سلام۔ اب میں دعوت خطاب کہہ دے رہا ہوں، فہم و فراست کے مالک تاری صاحب کو آئے اور اپنے گرہ کے در خیالات سے نوازیں۔ قدروں کا کھلاڑی زرداری، قدروں کا کھلاڑی زرداری، شیروں کا شکاری زرداری، شیروں کا شکاری زرداری، قوت ہے ہماری زرداری، قوت ہے ہماری زرداری، ایک سب پہ بھاری زرداری، ایک سب پہ بھاری زرداری۔ تجھے دیکھا تو جانا، تیری جرت کو مانا، تجھے دیکھا تو جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شاندار اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سالگرہ سمجھ کے میں آپ سب دوستوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو السلام علیکم جی بھٹو۔ دوستو، یہ سفر لمبا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ سفر جب سوچا، میں سمجھتا ہوں تب وہ بہت جوان تھا۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد اس نے اپنے دماغ میں، اپنے سوچ میں، بی بی لکھتی ہیں، بی بی کہتی ہیں کہ جب میں باہر پڑھنے جا رہی تھی تو یہ مجھے میرے والد نے کہا کہ یاد رکھنا کہ ان غریبوں کے پسینوں سے تم پڑھ رہی ہو۔ اس شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کی معراج کوئی سمجھے نہ سمجھے، میں سمجھتا ہوں۔ میں نے اس ہر کال کوٹری میں وقت گزارا ہے جہاں بھٹو صاحب رہے ہیں۔ بھٹو صاحب ایک اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو ہمالیہ کے پہاڑ روئیں گے۔ آج تک یہ خون بہہ رہا ہے اور وہ رو رہے ہیں، اور یہ خون کے آنسو ہیں، اور یہ ان کو بجھا نہیں سکتے، پوری دنیا نہیں بجھا سکتی، اس لیے کہ ان نے استعمال غلط ہوئے، یہ خود استعمال غلط ہوئے، ان کو استعمال کیا دنیا نے۔ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اگر ہوتے تو وہ استعمال نہ ہوتے، وہ دنیا کو استعمال کرتے آپ غریبوں کے لیے۔ یہ ان کی سوچ تھی اور یہ ان کی سوچ ہے
इनकी मैंने पहले भी कहा है, इनकी लाइफ नहीं है। अगर ज़ियाउल हक की ज़िंदगी कुछ नहीं, सियासी ज़िंदगी कुछ नहीं, अपनी ज़िंदगी जो अल्लाह ने लिखी हो हर किसी की वो लिखी है, पर सियासी ज़िंदगी उसकी कुछ नहीं थी। तो उसके जाने के बाद आज उसका कहीं नाम भी नहीं है। मुशर्रफ को जब मैं जेल में था, मैं कहता था कि मुझे नजर नहीं आता कहाँ है। लोग कहते थे सर वो प्रेसिडेंट है। मैंने कहा प्रेसिडेंट वो होगा जिसका कल भी है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह कल भी होगा। तो ये 50-60 साल का सफर नहीं था। मैं समझता हूं ये भुट्टो साहब की सोच उससे कुछ पहले से चल रही थी। और बीबी साहिबा के अंदर तो जिसे कहते हैं जमहूरियत कूट कूट के भरी हुई थी। हर चीज़ वो समझती थी। उसके वालिद ने उसको हर बात बताई थी, हर बात समझाई थी और उनकी सोच में कोई फर्क नहीं थी, कोई दो राय नहीं थी। वो भी अपने अवाम के लिए, अपने गरीबों के लिए लड़ना चाहती थी, उनके लिए कुछ करना चाहती थी। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी यही चाहते थे। और हम सब ने भी भुट्टो साहब की कदमों में कदम तो नहीं मगर उनके पीछे चलते चलते, बीबी साहिबा के पीछे चलते चलते जितनी हो सकती है वो हमने खिदमत की है। मुझे पता है कि लोगों को 18वीं तरमीम से तकलीफ है। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मुझे बात बताते हैं लोग आके। बड़े बड़ी जगहों पे लोगों को तकलीफ है मगर उनको नहीं पता कि 18वीं तरमीम मैंने अपने लिए नहीं की, मैंने पाकिस्तान के लिए की है ताकि पाकिस्तान को एक साथ रखा जा सके। इसलिए कि हमें पता है वो कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रही हैं। पहले भी यही ताकतें थी जिसकी वजह से बीबी लड़ी और अब भी हम लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाली नस्लें भी लड़ेंगी। मगर मैं आपको ये कहता हूँ कि बिलावल को आप ख्याल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपका लीडर है, बीबी का बेटा है, मेरा बेटा है। इसको मैं हमेशा आपके हवाले करता हूँ। इंशाअल्लाह आप इसके निगहबान रहेंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह बनकर रहेगा पीपल्स पार्टी का किला। जिए भुट्टो। नारे बेनजीर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आइए पार्टी के 91वें तासीस पे जद्दोजहद की नज़म हम सब सुने। अभी आपके सामने नज़म पढ़ेंगे, आइए हम सब। बीबी साहिबा की नज़म अभी यहाँ होगी, आप सब जो है मुलाकात फरमाइए। इंसानी खून से
जिंदा है बीवी, जिंदा है बीवी, जिंदा है बीवी, जिंदा है बीवी। जब तक सूरज चांद रहेगा। साथियों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन आइन के ज़ामीन, जमहूरियत के ज़ामीन, माशी समाजी इक़्तिसादी मसवात के ज़ामीन, सालार आला कारवान जमहूरियत, अजीम लीडर, अजीम रहनुमा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने गिरा कदर ख्यालात से नवाजेंगे। जिंदा है भुट्टो, बहरान भी बोला, बहरान भी बोला, बहरान भी बोला, बोलान भी बोला, बोलान भी बोला, बोलान भी बोला, पंजाब भी बोला, पंजाब भी बोला, पंजाब भी बोला, कश्मीर भी बोला, कश्मीर भी बोला, गिलगित भी बोला, गिलगित भी बोला, खैबर भी बोला, खैबर भी बोला, खैबर भी बोला, खैबर भी बोला, बिलावल, 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 नारे भुट्टो। ये म्यूजिक जरा बंद करना, 1 मिनट के लिए म्यूजिक बंद करना। ये जरा झंडे हाथों में उठाओ, जितने जाले, जहां तक मेरी आवाज जाती है झंडे बाहर निकालो, लहराओ झंडे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालो, हद्दे नजर, आपका लीडर आने वाला है, झंडों को जरा ऊपर उठाओ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसे नहीं, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जिंदा है भुट्टो, मजदूर का भुट्टो, किसान का भुट्टो, मेहरान का भुट्टो, पंजाब का भुट्टो, पश्तून का भुट्टो, कश्मीर का भुट्टो, कश्मीर का सिख भुट्टो, बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। आप सब झंडे लहराओ और तराना बजाओ जब तक बिलावल साहब स्पीच करने ना आए। कोई झंडा नीचे ना उतरे, कोई झंडा नीचे ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। आज से 51 साल पहले लाहौर में पाकिस्तान की एक
नई सियासी तारीख की बुनियाद रखी गई। एक नई सुबह का आगाज हुआ था, एक नए अहद की रोशनी फूटी, एक नई तहरीक ने जन्म लिया था। ये वो दिन था जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम का ऐलान किया गया। पाकिस्तान में एक नई सियासी फिक्र ने जन्म लिया, एक नई इनकलाबी लहर का आगाज हुआ और फिर देखते ही देखते ये इनकलाबी लहर पूरे मुल्क में फैल गई, जिसके नतीजे में अयूबी आमरीत का खात्मा हुआ, जमहूरियत की राह हमवार हुई और पाकिस्तान की तहरीक में पहली आम इंतखाबात कराई गई, जिससे मुल्क में जमहूरी सियासत का आगाज हुआ। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी मंशूर आज से 51 साल पहले दिया और इस मंशूर में जो बुनियादी उसूल वाज़े किए, आज 5 दहाइयां गुजरने के बाद भी वो असूल उसी तरह रेलेवेंट है जिस तरह ये असूल आज से 50 साल पहले रेलेवेंट थे। ये असूल क्या थे? इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की क़यादत में जिस बुनियादी सियासी उसूल की बात की थी, वो ये था कि इस्लाम हमारा दीन है और जमहूरियत हमारा सियासत है, जिससे मैं ये मतलब लेता हूं कि दीन को सियासत में ना घसीटा जाए। दीन और मजहब हर शख्स का जाती मामला है, जबकि जमहूरी सियासत समाज के इज्तिमाई मामला है। लेकिन तारीख गवाह है कि जब इस मुल्क में आमिरों ने अपनी जाली इक़्तिदार को डूल देना चाहा तो उन्होंने मजहब को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा में आज सब भुगत रहे हैं। आज पूरा मुल्क जिस आग में जल रहा है, ये आग आमिरों ने लगाई थी। जब मजहब के नाम पे सियासत होने लगी तो फिर मजहबी दहशतगर्दी ने जन्म लिया और इस्लाम जो कि सलामती का मजहब है, इस्लाम जो कि रवादारी का मजहब है, इस्लाम जो कि अमन का मजहब है, इस अजीम मजहब को दहशतगर्दी का नाम पर बदनाम किया गया। आज पाकिस्तान के हालात फिर तकाजा करते हैं कि हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के फलसफा की तरफ वापस लौटें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन बुनियादी असूलों को समझने की कोशिश करें और पाकिस्तान को इस आग से बचाए, जो आग हमारे अपनों ने लगाई थी और जो आग आज हर घर की दहलीज पर पहुंच चुकी है। वो आग इंतहा पसंदी की आग है, वो आग
दहशत गर्दी की आग है, वो आग अदम बर्दाश्त की आग है जिसने सारे समाज को अपनी लपेट में ले लिया। हमें इस आग को बुझाना है, पाकिस्तान को बचाना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा निभाना है। हम इस आग को उस वक्त तक बुझाने में कामयाब नहीं होंगे जब तक हमारे मुल्क का वजीर आजम मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को अपनी जंग नहीं समझेगा। आप खुद बताएं, जब हमारे मुल्क का वजीर आजम यौम शोदा पर शहीदों के वारिसों के सामने खड़े होकर कहेगा कि ये जंग हमारी जंग नहीं, तो उनके वर्सा पर क्या गुजरी होगी। खान साहब, मैं पूछता हूं, क्या उनके प्यारों, हमारी बहादुर अफवाज और पुलिस की कुर्बानी किस लिए थी? क्या उन्होंने ये जंग पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए नहीं लड़ी? क्या उन्होंने ये जंग उन दहशतगर्दों से नहीं लड़ी जो हमारे बहादुर अफवाज के सरों से फुटबॉल खेलते थे? क्या ये जंग हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन जालिमों से नहीं लड़ी जिन्होंने निहत्थे पाकिस्तानियों को बाजारों, सड़कों और स्कूल्स में नाहक कत्ल किया? खान साहब, आप मानो या ना मानो, मगर ये हमारी जंग है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। ये शहीद हमारे शहीद है, ये गाजी हमारे गाजी है। साथियों, थी उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की मईशत में तमाम लोगों को मसावी मौके मिले, तरक्की करने के लिए यकसा सहूलत मिले। इस मुल्क की मईशत में तमाम तबकात को उनका जायज हिस्सा मिले, मजदूर को रोजगार मिले, किसान को मेहनत की मुनासिब उर्जत मिले, नौजवानों को तालीम और रोजगार मिले, मेहनत कशों को उनका मेहनत का फल मिले, बुजुर्गों को अपने हक के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। साथियों, आपको तो पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला हमेशा गैर जमहूरी कुव्वतों और उन कुव्वतों की सरपरस्ती में पलने वाले सियासी लाडलों से रहा है। पहले हम एक लाडले से लड़ रहे थे और आज एक और लाडला मैदान में उठाया गया, लेकिन ये अनोखा लाडला है जिसने खेलने को चांद मांगा तो इसे पूरे मुल्क दे दिया गया। और आज ये जो पूरे मुल्क के साथ जो खेल रहा है, इसका नतीजा भी पहले लाडले से मुख्तलिफ नहीं होगा। ये ऐसा लाडला है जो चोरी भी करता है और सीना जोरी भी करता है, जो दिन को कुछ कहता है और रात को कुछ कहता है और फिर दोनों बातों से मुकर जाता है। यू टर्न पर यू टर्न लेता है और फिर कहता है कि यू टर्न के बगैर लीडर नहीं बन सकता। अरे भाई, लीडर वो होता है
लीडर वो होता है जो आवाम से किए गए कमिटमेंट पर खड़ा रहता है, आगे बढ़ता रहता है, लड़ता रहता है, करता रहता है, मरता रहता है। लीडर बनना है तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से सीखो, जिसने फांसी के फंदे को चूमा लेकिन अपने उसूलों से पीछे नहीं हटे। लीडर बनना है तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से सीखो, जिसने शहादत कबूल की लेकिन आमरों और दहशतगर्दों के आगे सर नहीं झुकाई। लीडर बनना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों और जानिसारों से सीखो, जो ना जेलों से डरे, ना कोरे से डरे, ना जिया से डरे, ना मुशर्रफ से डरे, ना दहशत से डरे, ना तशद्दुद से डरे, ना गोली से डरे, ना धमाकों से डरे। अपनी जिंदगियां दे दी लेकिन आवाम से किए गए वादे पर आंच नहीं आने दी। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ कि अवाम का हुकूमत पर एतमाद का ग्राफ इतनी तेजी से नीचे गिरी कि लोग 100 दिन से पहले ही नया पाकिस्तान की वारदातें से तंग आ चुके हैं। आज महंगाई से गरीबों की कमर टूट गई है। गैस, बिजली, पानी सब का बहरान है। बेरोजगार नौजवान जिंदगी से मायूस है। किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। मईशत संभालने का आसार नहीं नजर आ रही। और ये हुकूमत कंटेनर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। साथियों, इन्होंने एहतसाब के नाम पर इंतकाम का बाजार गर्म किया। एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालफीन को बदनाम किया और खुद खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन को बंद कर दिया। बिलियन ट्री सुनामी करप्शन, पेशावर मेट्रो में होने वाली करप्शन की फाइल्स बंद कर दी और मुकामात का सामने करने वालों को वजीर बना दिया। एक और सजा याफ्ता नाअहल नायब वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है, जिसने ज़राअत के नाम पर किसानों को लूटा, उसे ज़राअत में इस्लाहात का फर्ज सौंप दिया गया। जिसने लोगों की जमीनें छीनी, उसको इंक्रोचमेंट हटाने का काम सौंप दिया। खान साहब, आपने इदारों को डीपोलिटिसाइज करने की बात की। आपने गाय के मुकदमे में आईजी इस्लामाबाद को घर बेच दिया, डीपीओ पाकपतन को घर बेच दिया, आईजी पंजाब को घर बेच दिया। और जब आप सियासी मुदाखलत में मशरूफ थे, उस वक्त एसपी पेशावर शहीद ताहिर डावर इस्लामाबाद से अगवा होता है और उसकी मस्कशुदा लाश अफगानिस्तान से मिलती है। साथियों, इन्होंने 100 दिनों में पाकिस्तान में इनकलाब लाने की बात की थी। 100 दिन गुजर गए, लेकिन जनूबी पंजाब सूबे के लिए कुछ भी नहीं किया। सूबे का वादा भी दूसरे वादों की तरह झूठ ही निकला।
सूबे का वादा और जनूबी पंजाब के लोगों का सुहाना ख्वाब चंद वजारतों के लिए बेच दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा है कि इस ख्वाब की तकमील तक हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। साथियों, अब तो 18वीं तरमीम पर भी हमले कर रहे हैं। सूबों की खुद मुख्तारी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस मुल्क को वन यूनिट बनाना चाहते हैं। आपको मालूम है कि पहले भी वन यूनिट बनने से नुकसान हुआ था। और अगर अब फेडरेशन पर कोई हमला हुआ, अगर अब 1973 की आईन पर कोई हमला हुआ, एनएफसी पर कोई हमला हुआ, 18वीं आईन पर कोई हमला हुआ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी भरपूर मुखालफत करेगी और ऐसी हर कोशिश को नाकाम बना देगी। साथियों, मैं पूछता हूं खान साहब से कि आपने 100 दिनों में 100 से ज्यादा यू टर्न्स लेने के अलावा किया क्या है? फाटा का मर्जर का क्या हुआ? जुडिशल रिफॉर्म्स का क्या हुआ? पुलिस रिफॉर्म्स का क्या हुआ? खान साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आपने बलूचिस्तान के साथ किया क्या है? कितने लापता बलोच भाई बाजियाब हुए? मैंगल साहब, आपके 6 पॉइंट्स का क्या हुआ? आपको तो मालूम है कि खान ने 6 पॉइंट्स पर भी 6 यू टर्न्स ही लेना है। हैरत की बात है कि आप अब तक उनके इत्तेहादी हैं। और अब मैं अपने बेचारे MQM वालों से पूछता हूं, क्या हुआ कराची का पानी का? कहां गया कराची पैकेज? कहां गई कराची को तरक्की देने के वादे? हर वादे पर यू टर्न, फिर भी पतंग बल्ला भाई भाई। खान ने तो गुर्बत मिटाने का वादा किया था, मगर ये तो गरीब मकाओ प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। महंगाई की सुनामी में आवाम डूब रही है। गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा हुआ नान। क्या है ये तुम्हारा नया पाकिस्तान? जवाब दो इमरान खान। और तो और, आप एनक्रोचमेंट के नाम पर गरीबों के छोटी दुकानें, छोटे घर तोड़ रहे हो। आप लाखों लोगों को बेघर कर रहे हो, लाखों लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, और फिर कहते हो कि टेंट लो। अगर यू टर्न लेना है तो महंगाई पर यू टर्न लो। अगर यू टर्न लेना है तो महंगी बिजली पर यू टर्न लो। अगर यू टर्न लेना है तो महंगी गैस पर यू टर्न लो। अगर यू टर्न लेना है तो महंगे पेट्रोल पर यू टर्न लो। अगर यू टर्न लेना है तो आपके अवाम दुश्मन पॉलिसीज पर यू टर्न लो। आप तो मुल्क को तरक्की देने आए थे, तो फिर 250 बिलियन का तरक्कियाती फंड क्यों काटा?
जिससे 5 लाख अफराद बेरोजगार हुए। आपने गैर तरक्याती अखराजात कितने कम किए? आप तो बैरूनी सरमायाकारी करने आए थे, लेकिन पहले 100 दिनों में ही बैरूनी सरमायाकारी में 35% कमी क्यों आई? आपने बिजली के शोबे में किया क्या है? कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, लारकानो और सखर आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है। आपके 100 दिनों में सर्कुलर डेट पिछले सारे रिकॉर्ड्स क्यों तोड़ गया? खान साहब, सी पैक जैसे मुत्तफिका मंसूबों को किसने मुतनाज़ा बनाया है? दोस्त ममालिक में पाकिस्तान के बारे में शक व शुबा किसने पैदा किया है? पीटीआई ने 100 दिनों में ज़राए इमरजेंसी लगाने का वादा किया था। ये ज़राए इमरजेंसी तो क्या लगाते, मगर हमारे किसान जरूर इमरजेंसी में दाखिल हो चुका है। क्या आप खाद की कीमत बढ़ाकर, बीज की कीमत बढ़ाकर, ज़राए अमनियात की कीमत बढ़ाकर और इमदादी कीमत कम करके ज़राए इनकलाब लाना चाहते हो? क्या आप पानी के मसले पर तनाज़ात खड़े करके ज़राए इनकलाब लाना चाहते हो? खान साहब, आपने 100 दिनों में यू टर्न के अलावा किया क्या है? आपने गैस की कीमतें ना बढ़ाने पर यू टर्न लिया, आपने बिजली की कीमतें ना बढ़ाने पर यू टर्न लिया, आपने यूटिलिटी स्कोर्स बंद ना करने पर यू टर्न लिया, आपने IMF से कर्ज ना लेने पर यू टर्न लिया, आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सस्ती कीमत पर CNG देने पर यू टर्न लिया, जिससे पंजाब में 300 टेक्सटाइल यूनिट बंद होने का खतरा पैदा हुआ है। आपने अमीरों पर टैक्स लगाने और गरीबों पर इन्वेस्ट करने पर यू टर्न लिया, आपने CPEC में सऊदी पार्टनरशिप पर यू टर्न लिया, आपने अमेरिका से आने वाले फोन पर यू टर्न लिया, आपने इंडिया से आने वाले खत पर यू टर्न लिया, आपने मुजाहिरीन से मुआहदे पर यू टर्न लिया। आपको याद है कि 1 महीने तक तो वजीर आजम की रिहाइश का फैसला ना हो सका। इन्होंने अपने रिहाइश पर यू टर्न लिया, प्रोटोकॉल के ऐलान पर यू टर्न लिया, बैरूने मुल्क दौरों पर यू टर्न लिया, खुसूसी जहाज के इस्तेमाल पर यू टर्न लिया, वजीरों के बैरूने मुल्क दौरों पर यू टर्न लिया, सियासी भर्तियां ना करने पर यू टर्न लिया, और सबसे बढ़कर ये कि सादगी मुहिम के नाम अवाम की सादगी से खेलने का ड्रामा किया, तस्वीरें खिंचवाई और बहरूप की सियासत का रवाज डाला, और आज पाकिस्तान को क़यादत के संगीन बहरान में मुब्तला कर दिया, और आज इस बहरान ने पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है। हम पाकिस्तान को इस खतरे से निकालेंगे, हम इस यू टर्न हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के फलसफे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नजरियात की रोशनी में पाकिस्तान के अवाम के हकूक के तहत इस मुल्क की सियासत का महवर बनाएंगे। हुकूमत में जो भी होगा, इक़्तिदार जो भी करे, उसे भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के नजरियात की रोशनी में पाकिस्तान को आगे लेकर जाना पड़ेगा। साथियों,
اگر آپ کو یو ٹرن کی سیاست قبول ہے تو آپ کو نیا پاکستان مبارک ہو، مگر اگر نہیں، اگر آپ کو اصولوں کی سیاست چاہیے، اگر آپ نظریات کی سیاست چاہتے ہو، اگر آپ جمہوریت کی سیاست چاہتے ہو، اگر آپ مساوات کی سیاست چاہتے ہو، اگر آپ غریبوں کی فلاح کی سیاست چاہتے ہو، اگر آپ کسانوں کی خوشحالی کا سیاست چاہتے ہو، اگر آپ مزدوروں کے حقوق کی سیاست چاہتے ہو، اگر آپ عوام کی سیاست چاہتے ہو، تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا پڑے گا، میرے ساتھ دینا پڑے گا۔ میں سیاست اپنے لیے یا اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، میں اقتدار اپنے لیے یا اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتا، میں سیاست عوام کے لیے کرتا ہوں، میں اقتدار اپنے غریبوں کے لیے چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کی طاقت سے، آپ کی حمایت سے ان عوام دشمن قوتوں کا مقابلہ کروں گا۔ ہم ساتھ مل کر ان کو شکست دیں گے۔ ہم اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے، ہم اس ملک کو قائد عوام کا پاکستان بنائیں گے، ہم اس ملک کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پاکستان بنائیں گے۔ جیے بھٹو، جیے عوام۔